Okay, so we'll continue this. Okay, so I think in last lecture we have covered this Laplace transform. Okay, so the Laplace transform of 1 is now 1 upon s. तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, तो ही आपको आगे की क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना. So the Laplace transform of 1 is 1 upon s. The Laplace transform of e raised to at is actually 1 upon s minus a, है ना. So if a is negative, then it becomes s plus a. Remember this. Next is Laplace transform of sin of at. It's a upon s square plus a square. Sin के केस में a ऊपर आता है. Laplace transform of cos of at is s upon s square plus a square. Cos के केस में s ऊपर आता है. Next is the Laplace transform of sin hyperbolic. It's a upon s square minus s square. The Laplace transform of cos hyperbolic is actually s upon s square minus s square. So sin में s square plus a square and hyperbolic में s square minus a square is there in the denominator. Next is what? The last result is what? The Laplace transform of t raised to n. आप चाहो तो ये एक सिंगल फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है. So the Laplace transform of t raised to n when where n is greater than minus 1 is actually gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1, ठीक है. Okay, so now let me take one more page. Okay, now so till now we have covered the Laplace transform of standard function. तो वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन आपको याद रखने कि आपके पास 1 का Laplace ट्रांसफॉर्म है, आपके पास e raised to at का Laplace ट्रांसफॉर्म है, आपके पास sin of at का Laplace ट्रांसफॉर्म है, आपके पास cos of at का Laplace ट्रांसफॉर्म है, एंड आपके पास sin hyperbolic at, cos hyperbolic at, एंड लास्ट में आपके पास t raised to n का Laplace ट्रांसफॉर्म. सो दिस आर द ओनली स्टैंडर्ड फंक्शंस वेयर यू विल हैव द Laplace ट्रांसफॉर्म, ठीक है. तो इन्हीं फंक्शन का आपके पास Laplace ट्रांसफॉर्म है. ओके, तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि मतलब यूजिंग ओनली दिस फ्यू हार्डली देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ फंक्शन, साइन, trigonometric, hyperbolic and exponential, 3 or 4 types of function. So using this, how you find the Laplace transform of remaining function? तो आपको step by step समझ में आ जाएगा. Okay. So today in today's lecture we'll discuss some examples on this part only. Okay. The Laplace transform of the standard function. Okay. तो अभी एक्चुअल एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ओके कुछ और रिजल्ट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इन्हीं फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म है, ओके, हाउ यू फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन देन. अगर मुझे इसका Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे? यस, अगर मैं आपको पहले बोलता हूं कि आपके पास बस इन्हीं फंक्शन का Laplace ट्रांसफॉर्म है, बट अगर क्वेश्चन ये आ जाता कि फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 2t into cos 3t, देन हाउ यू फाइंड इट्स Laplace ट्रांसफॉर्म? यस, आई जस्ट वांट द हिंट. फिर इसका आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो. यस, टेल मी. बोलो. I repeat my question again. If we have Laplace transform of only these functions, sin, single cos, single sin hyperbolic, single cos hyperbolic. So from these results, how you find Laplace transform of sin 2t multiplied by cos 3t? क्या करना होगा आपको यहाँ पे? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बस हिंट चाहिए. How you find Laplace transform of this function? Yes? By converting it to sin additions. Yes. तो उसके लिए आपको sin a into cos b का ही फॉर्मूला यूज करना होगा. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin a into cos b? एनीवन? sin a into cos b का फॉर्मूला क्या है? ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए थे इनिशियली, ठीक है, बस आप वो देख के भूल जाते हो. तो जो भी पार्ट में लेता हूं ना वो हमेशा आगे जाकर कनेक्ट करने वाला है, ठीक है. तो sin a into cos b का फॉर्मूला क्या है? sin of a plus b plus sin of a minus b. So if I use this formula which is sin of a plus b plus sin of a minus b, so this can be written as sin of a plus b, that is 2t plus 3t is 5t, plus sin of a minus b, that is 2t minus 3t is minus
t and which is equal to sin 5t minus sin t because sin of minus t is minus sin of t. और फिर आपके पास sin of at का लैपलास ट्रांसफॉर्म है एंड sin t का भी लैपलास ट्रांसफॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, sin a cos b cos a sin b cos a cos b sin a sin b इन सारे फंक्शन को आपको इससे रिप्लेस करना है सो दैट यू कैन फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्रोडक्ट फंक्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन ए सिमिलर वे. ओके, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप साइन स्क्वायर एक्स का लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, तब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है बाय 1 माइनस कॉस 2x बाय 2. देन यू कैन फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एंड दिस कैन बी रिटन एज, अभी आप देखो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x. 1 का आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है, कॉस का भी आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है ना. सिमिलरली हाउ यू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ से क्यूब फंक्शन. ओके, कॉस स्क्वायर के लिए भी सेम रिजल्ट है ना, कॉस स्क्वायर एक्स का भी मैं लेता हूं तो आंसर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करो बाय 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 से. सिमिलरली व्हाट अबाउट साइन क्यूब फंक्शन, साइन क्यूब एक्स का आप लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे. ओके, साइन क्यूब एक्स के लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा, एनीवन नोज व्हाट इज फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा. ओके, इट इज ऑल्सो देयर. ओके, ये सारे रिजल्ट मैंने आपको देख के रखे. हाइपरबोलिक का भी एक रिजल्ट मैंने शायद दिया है. ओके, यहाँ पे आप चेक करो. ठीक है, सो जस्ट यूज दिस रिजल्ट, साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 sin cube theta, and from this you have to just write the value of sin cube x. So what is the value of sin cube x? So it is 3 sin x minus sin 3 theta or sin 3x upon 4. Again this 1/4 is constant. sin x का आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है, sin 80 का भी आपके पास लैपलास ट्रांसफॉर्म है. ठीक है, तो ये सारी अरेंजमेंट आपको करनी है while finding the Laplace transform of this function. तो cos cube x को भी आप वैसे रिप्लेस करिए, बस रिवर्स होता है. ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin हाइपरबोलिक क्यूब x एंड cos हाइपरबोलिक क्यूब x. तो इनके लिए ये रिजल्ट्स मैंने आपको इनिशियली दिए थे. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल. ओके, अभी आपको मुझे आंसर देना है. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin of 2t plus 3. Okay, so let me discuss the first question. Find the Laplace transform of sin of 2t plus 3. बोल कैसे करना है. Yes, anyone? Solution. How you do this? हिंट बस बोलो मुझे, मैं सॉल्व कर देता हूँ. यस, आपके पास साइन 2t प्लस 3 का लैपलास ट्रांसफॉर्म है क्या डायरेक्ट, वेदर वी हैव द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 प्लस b, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या आपके पास. यस है या नहीं, आपके पास बस क्या है, साइन ऑफ 80 एंड कॉस ऑफ bt का ही लैपलास ट्रांसफॉर्म है. सॉरी, साइन ऑफ 80 एंड कॉस ऑफ 80. वी डोंट हैव द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 80 प्लस b, है ना. इसलिए पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस sin 2t plus 3. कैसे, वी नो द फॉर्मूला फॉर sin of a plus b, so this can be written as, so the Laplace transform of sin of 2t plus 3, है ना. so this can be written as sin a, Laplace transform as it is sin a cos b plus cos a into sin b, cos 2t into cos 3. This is the formula for sin of a plus b. Now we know the property of Laplace transform. Okay, sorry, from the linearity property of Laplace transform, you can separate this Laplace transform with respect to this plus sign. So this can be written as Laplace transform of sin of 2t into cos 3 plus Laplace transform of cos of 2t into cos 3. ओके, एक और रिजल्ट आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि लैपलास ट्रांसफॉर्म में जितने भी कांस्टेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके, ऑल दोस कांस्टेंट यू कैन टेक आउटसाइड टू दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म. सो दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ 3 इनटू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t प्लस
कॉस ऑफ 3, सॉरी कुछ तो मिस्टेक हो गई यहाँ पे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लीज करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। सारे जो भी बोल रहा हूँ वो हमेशा करेक्ट नहीं होगा। सो साइन ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t, है ना। एंड नाउ आपके पास क्या रिजल्ट है ना, आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 भी है, आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 80 भी है। ओके, व्हाट इज दैट? द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80। क्या है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 and the Laplace transform of cos of 80? a upon a square plus a square। हाँ, साइन में a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और cos में s अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद ही रखने, तो ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ओके, सो विच इज इक्वल टू, सो द फाइनल आंसर इज cos of 3 मल्टीप्लाई बाय, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2t, तो वो क्या आएगा? a की वैल्यू 2 है, सो 2 अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस साइन 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय कॉस का क्या होता है? s अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, स्क्वायर प्लस 4। सो द फाइनल आंसर इज, इफ यू डू द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 2 cos 3 प्लस s। अभी ना आपको मेरा यस और 5 में कन्फ्यूजन होगा, बट आप देखो, ठीक है, वो मेरे सिमिलर ही दिखाई दे रहे। एस साइन 3 अपॉन स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये था आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। जस्ट बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी आपने ये सॉल्व किया। ओके, विल टेक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। Find the Laplace transform of sin t minus cos t square. Find Laplace transform of sin t minus cos t square. बोलो, हिंट आपको देंगे। अगेन वी डोंट हैव द Laplace transform of sin a minus cos b। इसका कोई आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या करना होगा? यस, यू सिंप्लीफाई दिस। पहले a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन यूज करो, सो इट बिकम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज नेक्स्ट? बोलो आगे। और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पे? और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? साइन टी कॉस टी को साइन 2t कर सकते हैं। गुड, करेक्ट, कर देता हूं मैं। दिस कैन बी रिटन एज साइन 2t। और क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? sin square t plus cos square t equal to 1, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज l इन ब्रैकेट 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर t, एंड ये जो 2 sin t cos t था, दिस कैन बी रिटन एज 2 नहीं, साइन ऑफ 2t। हो गया, ठीक है। नाउ यूजिंग द linearity property of Laplace transform, this you can separate, so it become Laplace transform of 1 minus Laplace transform of sin 2t। अभी आपको ये रिजल्ट पता ही है, 1 का Laplace transform होता है 1 अपॉन s, और sin का आता है a, मतलब 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। विल टेक वन मोर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3। Laplace transform of t raised to minus half। ओके, ये ट्रिवियल है। फाइंड Laplace transform of t raised to minus half। सो इन सॉल्यूशन, ठीक है, आपको वो रिजल्ट बस याद रखना होगा, विच इज Laplace transform of t raised to n is actually equal to gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1। so just try to remember this result, ठीक है। so this implies the Laplace transform of t raised to minus half is equal to the gamma of minus half plus 1। लिख लेता हूँ, चलो, minus half plus 1 upon s raised to minus half plus 1। so which is equal to
gamma of minus half plus 1 is gamma of 1 by 2, correct, upon s raised to 1 by 2. What is gamma of 1 by 2? Anyone? What is gamma of 1 by 2? Pi. Root pi, huh? Root pi. So root pi upon and s raised to 1 by 2 is root s. You can stop here also. Okay, this is the final answer. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, साइन स्क्वायर 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 4t. ये तो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको यूज करना है. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2. सो इफ आई यूज दिस रिजल्ट यू विल गेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 4t इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 आता, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 आएगा. सो 8t अपॉन 2 है ना, Laplace transform of this. But again this 1 by 2 is constant and you can separate the Laplace transform with respect to this minus sign also. So 1 by 2 in a bracket you will get the Laplace transform of 1 minus the Laplace transform of cos of 80, correct? So which is equal to 1 का Laplace transform आता है 1 upon s, so this is 1 upon s, और cos of 80 का Laplace आता है s upon s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो इट बिकम 64. हो गया. दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 4t. ठीक है, नेक्स्ट क्या था? ओके, 4 रेज टू t प्लस 5. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 रेज टू t प्लस 5. बोलो सॉल्यूशन. पहले तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेपरेट कर सकते हो. सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, 1 मिनट, हाँ क्या होगा? सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4 रेज टू t प्लस 5 इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यू कैन सेपरेट दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म, which is equal to Laplace transform of 4 raised to t plus the Laplace transform of 5. बोलो आगे. यस, इसके आगे कैसे करोगे? e raised to log. यस, वेरी गुड. ठीक है, आपको एक रिजल्ट मैंने पहले ही बोल के मतलब बोला था कि a raised to x जो फंक्शन है, ठीक है, या a raised to t, आप कुछ भी कंसिडर करो. ओके, this you have to convert in terms of exponential, okay, while solving the examples on Laplace transform. तो a raised to x आपको लिखना कैसे है now onwards? So x can be written as log of x, e raised to log of x, okay, that is nothing but e raised to x log a. Okay, तो इसके आगे जहाँ पर भी a raised to x का फंक्शन दिखाई देगा उसको आपको रिप्लेस करना है e raised to x log a से. So here this can be written as Laplace transform of, this can be written as e raised to, okay, क्या होगा ये, t log 4. What about next? 5 के लिए क्या है? 5 is the constant, can take outside and you will get only Laplace transform of 1. बोलो e raised to 80 का Laplace transform क्या है? It look like e raised to 80 ना, तो what is the Laplace transform of e raised to 80? e raised to 80 का Laplace transform क्या आता है आपका? 1 upon s minus a. So if you compare this, you will get 1 upon s minus log 4. ठीक है, and plus 5 is a constant, multiply by 1 upon s. ठीक है, तो ये 5 और s में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 5 into 1 upon s. So this is the final answer. So 1 upon s minus log 4 plus 5 upon s. ठीक है, नाउ आई थिंक हो गए सारे. ठीक है, तो ऐसे सिंपली क्वेश्चंस थे डेफिनेशन के ऊपर.
ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये परफेक्ट समझ में आता है तो ही फिर आप आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, तो अभी तक आपने क्या क्या लर्न किया है, ओके, Laplace transform ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन, ये सारे रिजल्ट आपको याद रखने, एंड देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस, ओके। ये ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, ओके, ज़्यादा कुछ लेंथ नहीं है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन आपको इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आने वाला है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। सो नेक्स्ट now we have to learn different properties of Laplace transform. So properties of Laplace transform. प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट, जैसे आपने डेरिवेटिव के टाइम पे लर्न किया था ना, डेरिवेटिव में भी आपने पहले इनिशियली sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, जैसे सिंपल एग्जांपल्स आपने लर्न किए थे, एंड देन आफ्टर दैट we have added the derivative of product function, है ना, derivative using substitution method, and there are different techniques to find derivative of the given function. In a similar way, now we will add some properties of the Laplace transform so that you can find the Laplace transform of some more complicated function. कैसे भी करके आपको बस करना क्या है, इस टॉपिक का एम ही क्या है, आपको Laplace transform कैलकुलेट करना है गिवन फंक्शन का, दैट इज अवर एम, है ना। तो ओके, सो आई थिंक ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ऑलरेडी हमने मतलब स्टार्टिंग में हमने कवर की थी, विच इज लीनियर प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज अ लीनियर प्रॉपर्टी, विच इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 of t प्लस C2 F2 of t इज इक्वल टू C1 Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 of t प्लस C2 ओके Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ F2 of t, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ऑब्वियसली there will be the second shifting property immediately after this, okay. So what is the first shifting property, पहले आपको प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप उसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। मैं एग्जांपल भी इमीडिएटली लेने वाला हूँ, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इफ वी नो the Laplace transform of given function, so yeah, or I can say if we have the Laplace transform of f of t, okay, which is say f of s, ये आपको पता है, ये नोटेशन आप याद रखो, कैपिटल F मीन्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f, है ना। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस नोटेशन। सो इफ वी नो द Laplace transform of f of t, then we can easily find a Laplace transform of a function which is multiplied by exponential. So from this, how you find the Laplace transform of this same f of t when it is multiplied by exponential, and what is that result? It is just the f of s minus a, और simply इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, रिप्लेस s by s minus a in the Laplace transform of f of t। वही मैंने किया है ना, दिस यप मतलब Laplace ट्रांसफॉर्म होता है, किसका Laplace ट्रांसफॉर्म होता है, f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म होता है। आपको चाहिए f of s माइनस a, मतलब आपको क्या करना है, जो Laplace ट्रांसफॉर्म था उसमें s को रिप्लेस करो s माइनस a से, दैट विल बी द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल, ओके। सो हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ओके। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है विच इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है विच इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। या इसके आगे मैं प्रूफ स्किप करने वाला हूँ, यू कैन इजीली प्रूव ऑल दिस रिजल्ट्स, ये सारे ट्रिवियल प्रूफ है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन वर्क ऑन दिस, ओके। सो यस, दिस प्रॉपर्टी क्लियर टू एवरीवन, प्रॉपर्टी तो समझ में आ रही है।
अगर आपके पास एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल और सिंपली द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल इज एक्चुअली द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ये कैलकुलेट कैसे करना है, आपको बस एफ ऑफ टी का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ओके, हाउ यू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू at मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ टी। उसके लिए आपको ये पूरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, आप बस एफ ऑफ टी का ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो और वो जो आंसर आपका आता है उसमें s को रिप्लेस करो s माइनस a से। That will be the Laplace transform of e raised to at into f of t. Okay, we'll take one example immediately. So, question number 1. Find the Laplace transform of e raised to t into 4t. चलो ठीक है, find the Laplace transform of e raised to t इंटू 4t। ठीक है, यहाँ पे भी आप अच्छे से देखो, यहाँ पे जो फंक्शन या यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास आ रहा है, ओके, दैट फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहाँ पे आप देखो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, मीन्स व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जिस भी क्वेश्चन में e रेज़ टू t मल्टीप्लिकेशन में आता है या e रेज़ टू at मल्टीप्लिकेशन में आता है, इन ऑल दोज एग्जांपल्स यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सो हियर आल्सो यू कैन सी दिस फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, मींस व्हाट, यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? ओके, एक मल्टीप्लाइड में जो फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के मल्टीप्लाई में जो फंक्शन आ रहा है, ओके, उसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। ओके, सो इन सॉल्यूशन what is your first shifting property? First find the Laplace transform of a function, okay, which is in the multiplication of exponential। तो exponential का e raised to at के multiplication में क्या आ रहा है? 4 raised to t आ रहा है। So first we have to find the Laplace transform of 4 raised to t। पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, so what is that? So this can be written as e raised to t log 4, a raised to x की प्रॉपर्टी है, this can be written as e raised to t log 4 and e raised to at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? बाय दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन s माइनस log 4। तो यहाँ पे आपके पास 4 raised to t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, बट आपको क्या चाहिए? सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at मल्टीप्लाई बाय दिस f of t इज एक्चुअली इक्वल टू, क्या लिखना होगा? बोलो, एनीवन? व्हाट इज दिस आंसर? व्हाट इज माय आंसर? आपका आंसर f ऑफ s माइनस है, तो यहां पे क्या लिखना होगा? हाँ, आपको मैंने क्या बोला था, अगर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, तो जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका लैप्लास कैलकुलेट करो। ये हो गया उसका लैप्लास, उस लैप्लास में s को रिप्लेस करो। क्या करना है बेसिकली, आपको s को रिप्लेस करना है बाय s माइनस a, बट a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ t इन द एक्सपोनेंशियल, तो t का कोएफिशिएंट 1 है, तो s को रिप्लेस करो s माइनस 1 से, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो e रेज़ टू t इंटू 4t इज इक्वल टू 1 अपॉन s की जगह पे बस s माइनस 1 रख दो, and that will be the final answer. So that is the Laplace transform of e raised to t into 4t। अब देखो आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। अगर आपके पास, अगर किसी एग्जांपल में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, ओके, तो आपको बस करना क्या, वो जो अदर फंक्शन है उसका लैप्लास कैलकुलेट करो, एंड इन दैट लैप्लास जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस a। दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। विल टेक वन मोर एग्जांपल, अगर नहीं क्लियर होता तो मुझे बोलो। e raised to 2t cos t cos of 2t, okay, find Laplace transform of e raised to 2t cos t into cos of 2t। ओके, एक और बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बोलो। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी जो फंक्शन आपको गिवन है विच इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल, तो आपको करना क्या है, वी हैव टू यूज दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टू यूज दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले आपको आपका जो अदर फंक्शन है, मतलब एक्सपोनेंशियल छोड़ के जो आपका ऑर्डर फंक्शन है उसका आपको लैप्लास कैलकुलेट करना है। सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द लैप्लास ऑफ दिस ऑर्डर फंक्शन, दैट इज L ऑफ cos t इंटू cos ऑफ 2t। ठीक है, तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है? टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वी नीड टू यूज द रिजल्ट ऑफ cos a इंटू cos b। सो दिस इज नथिंग बट cos a इंटू cos b का रिजल्ट क्या है, लिख लेता हूं यहाँ पे। व्हाट इज दैट रिजल्ट? एनीवन?
व्हाट इज cos A into cos B? Cos of A plus B plus cos of A minus B. Okay, correct me if I, हाँ okay, मुझे बोला क्योंकि मुझे फॉर्मूले कहीं कहीं रॉन्ग भी हो सकते हैं. ओके, सो cos of t plus 2t become 3t and plus cos of t minus 2t become minus t. ठीक है, so which is equal to now you can separate this Laplace and आपको पता है cos of minus t क्या होता है? Cos of minus t is again cos t. So by separating this Laplace you will get L of cos 3t plus L of cos of minus t. t आता है तो ज़रूरत नहीं है वो लिखने की. So cos of t, cos of t. And now what is the Laplace transform of cos of at? वो रिजल्ट भी आपको पता है. That Laplace transform of cos of at is actually s upon s square plus a square. So if you use this result, here you will get equal to s upon s square plus 9, as 3 a is 3 here, a is 3 here, so a square become 9 plus s upon s square plus 1. ठीक है, तो ये हो गया आपका Laplace ऑफ अदर फंक्शन. नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू, क्या था वो, मल्टीप्लाई किससे था, 2t, हाँ, e रेस टू 2t मल्टीप्लाई बाय cos t इंटू cos ऑफ 2t इज एक्चुअली वॉट, क्या लिखना है आपको इसमें आपको बस करना है क्या है, जस्ट रिप्लेस s बाय, बोलो किससे रिप्लेस करना होगा, s-2. वेरी गुड, जस्ट रिप्लेस s बाय s माइनस 2. तो अगर यहाँ पे मैं -2 लिखता हूँ तो चेंज क्या होगा, यस रिप्लेस बाय s प्लस 2. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द साइन. हमेशा यहाँ पे e रेस टू प्लस a नहीं आने वाला, यहाँ पे -2 भी आता है तो s रिप्लेस बाय s प्लस 2 होगा. ओके, सो इट डिपेंड ऑन द साइन है, यहाँ पे प्लस मतलब 2 है तो -2 होगा, अगर यहाँ पे -2 आता तो इट बिकम +2. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दैट. ओके, सो विच इज इक्वल टू, बस इतना ही चेंज करके वैसे रख देना है. तो s की जगह पे s माइनस टू स्क्वायर प्लस 9 प्लस s माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 हो गया फाइनल आंसर. ठीक है, सो देयरफॉर दिस प्रॉपर्टीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस होल फंक्शन, आप बस आधा Laplace कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब एक्सपोनेंशियल को छोड़ के जो पार्ट आ रहा है उसका Laplace कैलकुलेट कर रहे हो. देन जस्ट बाय रिप्लेसिंग s बाय s माइनस a यू विल गेट दैट फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट. ठीक है, ओके, एक और मैं आपको देता हूँ आई थिंक, और ये आप होमवर्क करो, ये ट्रिवियल है. सो सेकंड मुझे बोलो कि कैसे होगा. थर्ड, ओके, फाइंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ at इंटू साइन ऑफ at. ओके, अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है. ओके, सो डायरेक्टली तो आप सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हो. सो हाउ यू डू दैट, क्या करना होगा यहाँ पे, व्हाट इज योर एडजस्टमेंट, एनीवन? राइट नाउ दैट एक्सपोनेंशियल इज नॉट देयर. आप देखो ना, e रेस टू at का टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डायरेक्टली तो यूज नहीं होने वाली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस और यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन, तब जाके आपको रिजल्ट समझ में आएगा. सो यू सिंप्लीफाई दिस, एनीवन? कैसे सिंप्लीफाई करोगे, cos हाइपरबोलिक ऑफ at इंटू साइन ऑफ at की डेफिनेशन यूज करके, है ना. तो इसलिए वो रिजल्ट आप याद रखो. वी नो द डेफिनेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ at, दैट value is e raised to at plus e raised to minus at upon 2 multiply by sine of at. Now using the linearity property of Laplace, this 1/2 is a constant, you can take outside. Also you can separate this Laplace transform with respect to addition, but ये करते समय आपको sine of at से भी अंदर multiply करना है. So that become Laplace transform of e raised to at into sine of at पहले प्लस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस at इंटू साइन ऑफ at. ये ब्रैकेट कंप्लीट. नाउ
it is of the so here every function is multiplied by exponential. So now onwards you have to just use the second shifting property, sorry फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इसके आगे बस आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है. सो फॉर दैट, सो टू यूज दैट फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको पहले ऑर्डर फंक्शन का क्या करना है, लैप्लास कैलकुलेट करना है. तो इन दोनों एग्जाम्पल में ऑर्डर फंक्शन आपका सिमिलर है, साइन ऑफ 80 साइन ऑफ 80. सो फर्स्ट जस्ट कैलकुलेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80. तो आई थिंक ये सबको ही पता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. साइन ऑफ 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो जस्ट यूज दिस रिजल्ट, है ना. एंड नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलो क्या क्या चेंज होगा. इसमें क्या चेंज करना है, फर्स्ट में क्या चेंज करना है, यस को रिप्लेस करना है बाय किससे, एस माइनस से. करेक्ट है, ये तो स्टैंडर्ड ही है. हाँ, सेकंड में क्या होगा, सेकंड में एस प्लस ए. वही मैं आपको बोल रहा था कि माइनस आता तो वो प्लस बन जाएगा. हो गया आंसर. तो दोनों केस में रिजल्ट सेम ही है, यही अप्लाई करना है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बट फर्स्ट टर्म में एस की जगह पे एस माइनस ए आएगा, सेकंड टर्म में एस की जगह पे एस प्लस ए आएगा. सो द फाइनल आंसर इज, सो देयरफॉर इट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 इन ब्रैकेट. हाँ, फर्स्ट में क्या होगा, सेम रिजल्ट लिखो, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट एस को रिप्लेस करो एस माइनस ए से. सो एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी सेम लिखना है बट एस को रिप्लेस करना है एस प्लस ए से. सो एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस, कुछ ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए मेरा ए. ओके, हो गया. ठीक है, एंड नाउ दिस इज ओके, लेट मी डू इट क्विकली. e रेस टू माइनस 80 t रेस टू n, लास्ट एग्जाम्पल है वो कर लेता हूँ जल्दी से. क्या था, नंबर 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू 80 इंटू t रेस टू आई थिंक n, ये आपको कैलकुलेट करना है. ओके, माइनस 80 डजंट मैटर, माइनस आने दो प्लस आने दो. ओके, सो इन सोल्यूशन, ओके, कंसिडर द ऑर्डर फंक्शन. ऑर्डर फंक्शन आपका क्या है, t रेस टू n, तो उसका लैप्लास आपको कैलकुलेट करना है. सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेस टू n, ओके, विच इज इक्वल टू गैमा ऑफ n+1 अपॉन s रेस टू n+1. रिमेंबर दिस रिजल्ट. ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ओके, नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बस क्या करना है, यस को रिप्लेस करना है यहाँ पे s माइनस ए, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ए आ रहा है तो इट बिकम s प्लस ए. सो जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू बाय s प्लस ए. सो द फाइनल आंसर इज, एंड देयरफॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 80 t रेस टू n इज इक्वल टू गैमा ऑफ n+1 अपॉन s की जगह पे s प्लस ए रेस टू n+1. ठीक है, इतना ही आने वाला है. Okay, that is all about the first shifting property. Okay, now there are some examples. Okay, मैं आपसे अभी यही एक शीट शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैंने कहीं पे भी आंसर नहीं लिखे. Okay, ये पर्पसफुली मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि आप क्या करो, डे बाय डे जैसे भी लेक्चर हो रहा है आप ये एग्जाम्पल आपके नोटबुक में सॉल्व करो. सी, इसके आगे आपको कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. दैट विल बी द फाइनल प्रिपरेशन. एंड से आने दो या ऑनलाइन आने दो, कुछ भी आने दो, दैट विल बी द फाइनल प्रिपरेशन. ठीक है, तो और मैं लास्ट में फिर आपसे ये शीट शेयर करता हूँ जो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ. बट ये आप अगर ये डायरेक्टली देख के भी सॉल्व करते हो ना, तो आपको वो लेक्चर उसी दिन समझ में आएगा. इफ यू वांट टू रेफर एनी आंसर, यू कैन रेफर द वीडियो डायरेक्टली. ठीक है, तो रेडीमेड इमीडिएटली नहीं देने वाला, बट आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट. अभी के लिए आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो आपके नोटबुक में, एंड उतना भी अगर आप कर लेते हो दैट विल बी द फाइनल प्रिपरेशन. उसके आगे कुछ ज़्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. ओके, इट टेक सम टाइम नाउ. I will move to the next property. ये ले लेता हूँ, then we'll stop. Okay. Now change of scale property. Actually second shifting property भी है. ठीक है, this is the second shifting property that I will take in next lecture. So within the last 5 minutes I will cover that
थर्ड प्रॉपर्टी, है ना. फर्स्ट थी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड हो गई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस फोकस ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. Then we stop. Okay, so what is this? If we know the Laplace transform of f of t, that is if the Laplace transform of f of t is equal to some f of s, then you can easily find the Laplace transform of f of a into t. देखो ये भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है. मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, साइन 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, सॉरी साइन t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, तो आप साइन 10t का भी कैलकुलेट कर सकते हो ये रिजल्ट से. या अगर आपके पास e रेस टू t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है तो आप e रेस टू 99t का भी कैलकुलेट कर सकते हो. at है ना, t को अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में आपके पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है. सो आई विल गिव दैट रिजल्ट डायरेक्टली हियर. सो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 1/a f ऑफ s बाय a. ठीक है, तो इसको भी कैसे याद रखना है. f ऑफ s बाय a मतलब क्या होता है, f ऑफ s बाय a मतलब क्या होता है, रिप्लेस s बाय s बाय a इन दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. जो f ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आने वाला है उसमें s की जगह पे s बाय a रख दो, फिर उसको 1/a से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, सो विल टेक वन एग्जांपल एंड देन विल stop. So examples. Question 1. If okay, क्या है? If Laplace transform of f of t equal to, ये गिवन है आपको, ये ऑलरेडी गिवन है, s स्क्वायर माइनस s प्लस 1 अपॉन 2s प्लस 1 s माइनस 1 2s plus 1 s minus 1 multiply by e raised to minus 2s. So this is given. So we have given Laplace transform of some f of t. Okay, वो फंक्शन उन्होंने नहीं दिया है बट उसकी कोई ज़रूरत है भी नहीं. ठीक है, सो तो आपके पास एक Laplace transform ऑलरेडी है एंड फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड if Laplace transform f of t is this, then find Laplace transform of f of क्या था वो, आई थिंक 4t है शायद. लेट मी चेक. हाँ 4t. कैलकुलेट Laplace transform of 4t. ठीक है, बोलो. लेट मी टेक अ नेक्स्ट पेज. ठीक है, रिजल्ट क्या है. सो इन सॉल्यूशन रिजल्ट क्या है कि Laplace transform of f of a t is equal to 1/a कैपिटल f of s by a. अब इसको कैसे रेड करना है मैंने बोला है. कैपिटल f of s by a मतलब क्या होता है, f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो, f of t का Laplace ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करो और उसमें s को रिप्लेस करो s by a. ठीक है, सो हियर इन दिस एग्जाम्पल व्हाट इज आवर f of s. बोलो, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें f of s क्या है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज f of s. इस गिवन एग्जाम्पल में f of s क्या है. हाँ बोलो, f of s बोलो क्या और a बोलो क्या है. हाँ, तो ये जो भी Laplace transform f of t जो भी होता है that will be the f of s. So here we have given f of s as s square minus s plus 1 upon 2s plus 1 into s minus 1 into e raised to minus 2s. और a क्या है आपको चाहिए, f of 4t, मतलब a क्या लेना है आपको 4. ओके, हो गया. तो आंसर क्या आता है. सो द Laplace transform of f of 4t is equal to a 4 है मतलब 1/4 f of s by 4. तो करना क्या है, f of s में s को रिप्लेस करो s by 4 से, हो गया आंसर. सो विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू s को रिप्लेस करो s by 4. सो s by 4 स्क्वायर माइनस s by 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू s by 4 प्लस 1 s by 4 minus 1 e raised to minus 2 into s by
4. जस्ट डू इट क्विकली, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये. सो विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब ये नीचे 16 आने वाला है, सो मैं एलसीएम 16 मैनेज करता हूँ यहाँ पे. सो एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2/4 इज 1/2, तो ये आने वाला है s प्लस 2 नहीं, s प्लस 1 नहीं, s प्लस 2 आने वाला है. नीचे 2 होगा और यहाँ पे s माइनस 4 नीचे 4 होगा. सो 2 इंटू 4 बिकम 8 है ना, और ये रहेगा e रेज टू माइनस s/2. डू इट क्विकली. तो ये 8 बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा 2. सो फाइनली यू विल गेट 1/2 इन ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 16 अपॉन s प्लस 2. ये सिंप्लीफाई जितना हो रहा है उतना करना है आपको. इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं भी किया तो भी करेक्ट ही है, बट जितना हो रहा है उतना करो. e रेज टू माइनस s/2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये ट्रिवियल, इसमें ना कुछ कैलकुलेशन करना है ना मतलब कुछ ज़्यादा, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट नहीं करना है, विच इज़ ऑलरेडी देयर है ना. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी आपके पास था, आपने बस 80 का रिजल्ट यूज करके सॉल्व किया. ओके, सो हियर विल स्टॉप.